हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है ऑन दिस डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस बाय प्रो टैलेंट। हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस 10 पॉइंट्स। दिस इज ऑफ 20th जुलाई। 28 जुलाई का ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हम आपके साथ कवर करेंगे और मैंने कल बहुत सारे सवाल आपसे पूछे थे। ठीक है दोस्तों, ये समझिए करंट अफेयर की तैयारी में क्या चीज का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, वन ऑफ द वंडरफुल मेथड इज यू कैन से गाइडेड इंक्वायरी मेथड। क्या बोलते हैं इसको? गाइडेड इंक्वायरी मेथड। सो व्हेन यू आर लर्निंग करंट अफेयर, then you must know that you must develop your own inquiry mindset for learning current affair. आपको बहुत सारी चीज़ें याद रखनी होती है, ठीक है, पर याद थोड़ी रहता है सब चीज़। एक बार पढ़ा और सब कुछ करंट अफेयर में याद हो जाए, इतना सिंपल होता तो बड़ा मज़ा आ जाता। ठीक है, पर ऐसा है नहीं। दैट मीन्स व्हाट यू मस्ट डू इज focus on your ability to inquire. That means you are asking question to yourself कि why this happen, why that happen. ठीक है, तो वो जो inquiry वाला mindset जब बनता है तो दोस्तों ओवरऑल हमारा again से ब्रेन बहुत सारी चीज़ें नोट करने में, याद रखने में मदद करता है। Yes or no? And that's why this inquiry mindset is very important. This is a scientific method, just like all the scientists actually work on this particular way. And then this is supported by your guide, that is me. I am helping you with respect to learning all these issues. ठीक है ना? तो दोस्तों guided inquiry method will help you to improve on your current affair. Please make sure that you daily, you can say, put a lot of efforts on learning this interesting things with me. Chaliye, great. Let me start with this very important point, which is, you can say, the India group. You know that there is a fight, you can say, between the current ruling party and then there is, you can say, all opposition party. ठीक है, सभी अपोजिशन पार्टी ने अपना एक अलायंस बनाया जिसका नाम दे दिया इंडिया। ठीक है, जहां पे उन्होंने कहा इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, दिस इज इंडिया। मोदी साहब ने बिल्कुल इसके ऊपर हल्ला चालू कर चुके हैं। मोदी साहब के पास तलवार है और वो तलवार के द्वारा उन्होंने चालू कर दिया दैट क्विट इंडिया मूवमेंट चालू करते हैं वापस। ठीक है ना, चलो कोई नहीं, है ना। अब ये गांधी जी ने जो क्विट इंडिया मूवमेंट चालू करी थी, वही नाम मोदी साहब इस नए कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे हैं। सब कुछ खेल उस कॉन्टेक्स्ट का, उस नाम का है। पर एनीवे, मोदी साहब इज नॉट स्पीकिंग ऑन मणिपुर। मणिपुर के ऊपर वो कुछ बोल नहीं रहे, और जब मणिपुर के ऊपर कुछ बोल नहीं रहे तो इट इज बट ऑब्वियस that everyone is frustrated, everyone is not happy with the current, you can say, executive government, and therefore there is no trust motion. ठीक है, no trust motion or no confidence motion is, you can say, presented in Lok Sabha. Now what do you mean by this? You all know that we have three, you can say, pillars of democracy. One is executive, other is legislature, and then third is judiciary. In India, legislature, that means the people whom we elect directly or indirectly. We elect some people directly in Lok Sabha and indirectly in Rajya Sabha. ठीक है, so this people, from this members of parliament, we have some members as an executive. That means they become PM and the ministers. And this PM and ministers are accountable to legislature. ठीक है, so this no trust motion or no confidence motion, ठीक है, it is also termed as no confidence motion. आप no trust motion बोलो या no confidence motion बोलो, दोनों चीज़ें सेम है। ठीक है, तो जो no confidence motion या no trust motion के बारे में जो बात हो रही है, ठीक है, वो you can say कौन प्रेजेंट करता है? So it is presented by the members of the parliament. Any member can propose this. He must get 50 people का sign. ठीक है, and then it is no trust motion means जो legislature में से जो government है, ठीक है, कितने लोग गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, दैट इज कितने लोग एग्जीक्यूटिव को सपोर्ट करते हैं, क्या एग्जीक्यूटिव को मेजोरिटी मिलेगा इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, तो दोस्तों ये नो ट्रस्ट मोशन इज
यू कैन से एडमिटेड इन लोकसभा. अभी तक भारत में कितनी बार नो कॉन्फिडेंस मोशन हो चुका है, ठीक है, वो नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, बट देर आर 26 times it has took place. ठीक है, one of the major time it took place in the last 25 year was in 1993. okay, ठीक है, that was against नरसिम्हा राव गवर्नमेंट एंड दैट was connected to बाबरी मस्जिद. बाबरी मस्जिद में जो प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है, उस बाबरी मस्जिद को 1993 में तोड़ दिया था, तो उसके खिलाफ नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के खिलाफ यू कैन से नो कॉन्फिडेंस मोशन दाखिल किया था एंड गवर्नमेंट वन इट. जब गवर्नमेंट जीत जाती है तो वो उसको रिजाइन करने की जरूरत नहीं है. देन केम इन अप्रैल 99, ठीक है, दैट वाज अगेंस्ट अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट. ओके, सो गवर्नमेंट लॉस्ट बाय 1 vote. ठीक है, सो दैट मीन्स गवर्नमेंट मस्ट रिजाइन. ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को है ना 13 दिनों में निकलना पड़ा था. दैट वाज अ टाइम. ठीक है, सेकेंड टाइम इन 2003 वंस अगेन अगेंस्ट अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट बिकॉज दैट वाज अ कोएलिशन गवर्नमेंट. तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन तो आना ही था. ठीक है, तो वहां पे वो जीत गए थे, सरकार जीत गई थी. फिर जुलाई 2008 में अगेंस्ट मनमोहन सिंह गवर्नमेंट वन इट. ओके, सबसे ज्यादा अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ है तो दैट वाज अगेंस्ट इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट, 15 बार हुआ था. ठीक है, तो लोकसभा के स्पीकर जो आपके सामने यहाँ पे दिख रहे हैं, मिस्टर ओम बिरला, ही एक्सेप्ट्स इट. ठीक है, एंड देन दिस नो कॉन्फिडेंस मोशन गोज यू कैन से इन दी पार्लियामेंट. ठीक है, मिनिमम 50 मेंबर का अप्रूवल चाहिए. दैट इज नंबर 1. नंबर 2, ठीक है, अगर ये पास हो गया गवर्नमेंट मस्ट रिजाइन. अगर ये फेल हो गया गवर्नमेंट विल बी इन दी पावर. सिंपल. दिस इज ऑल्सो नोन एज फ्लोर टेस्ट. क्या बोलते हैं इसको? फ्लोर टेस्ट बोलो, नो ट्रस्ट मोशन बोलो, कॉन्फिडेंस मोशन बोलो, सब अलग अलग नाम है. ठीक है, दिस इज एक्सेप्टेबल. ओके, आई होप द आइडिया इज वेरी क्लियर. ग्रेट. कमिंग टू वन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज विच इज कमिंग फ्रॉम चाइना. इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिस्टर अजीत डोवल, जो आपके सामने दिख रहे हैं, अजीत डोवल met टॉप चाइनीज डिप्लोमेट वांग यी. ओके, वांग यी जो आपको दिख रहा है. ओके, सो दिस इज ब्रिक्स की एक मीटिंग हो रही है. ब्रिक्स, यू नो ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन ब्रिक्स की एक मीटिंग हो रही है. फॉरेन मिनिस्ट्री की मीटिंग हो रही है, और सॉरी एनएससी की मीटिंग हो रही है, नॉट फॉरेन मिनिस्टर, एनएससी की मीटिंग हो रही है. और उस एनएससी की मीटिंग में अजीत डोवल, चाइना से वांग यी, दे आर मीटिंग एट जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका में ये मीटिंग चल रही है. सो दिस इज वी कैन से डोवाल एंड वांग मीटिंग, ऐसा कहते हैं. तो ये समझ में आया वांग यी के बारे में. ओके, नाउ चाइना ने अपने फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर शिन गेंग को निकाल दिया एंड वांग यी इज टेम्पररी होल्डिंग दिस पोजीशन ऑफ फॉरेन अफेयर मिनिस्टर, नॉट जस्ट you can say security advisor but also foreign affair minister. ठीक है, this is happening in China. Now why you can say Xi Jinping is axing the Qin gang or Xin gang, उनको क्यों निकाल रहा है? There were some corruption charges against this person. There are you can say some kind of unexplained absence of this person, क्योंकि कहीं ना कहीं you can say उनके लिए उनकी जो कम्युनिस्ट पार्टी है that is not very positive. Okay, great. अब बड़ा महत्वपूर्ण एडिटोरियल है. इस एडिटोरियल को शांति से समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या मुद्दा है. ठीक है, दिस इज अबाउट ह्यूमन ट्रायल. ह्यूमन ट्रायल के नजरिए से ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है. दोस्तों, आपको याद होगा एक संस्था है भारत की कॉल्ड ICMR. ओके, यू नो फुल फॉर्म ऑफ ICMR? इफ यू नो इट प्लीज पुट दैट इनटू कमेंट बॉक्स. यू मस्ट नो ICMR का फुल फॉर्म. ठीक है, द बायो एथिक्स यूनिट, नोट करना चाहिए. ये बात हो रही है ह्यूमन ट्रायल्स के बारे में. ह्यूमन ट्रायल्स कहाँ तक अप्रूवल करा जाए, और ये सब मुद्दे एथिक्स के ऊपर आते हैं. सो बायो एथिक यूनिट ऑफ ICMR हैज रिलीज्ड अ कंसेंसस पॉलिसी स्टेटमेंट ऑन कंट्रोल्ड ह्यूमन इन्फेक्शन स्टडी which is popularly known as CHIS, Controlled Human Infection Studies, CHIS. ठीक है, and they had a policy statement for comments, and this is going to be the first step in India for allowing such kind of studies on the humans. ठीक है,
So this is also known as CHIS, also known as ह्यूमन चैलेंज स्टडीज. ठीक है, प्राइमरली कोई हेल्दी वॉलंटियर्स इस स्टडीज में इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, वो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को अपने अंदर लेते हैं इन अ कंट्रोल एंड मॉनिटर एनवायरनमेंट, और उसके बाद उनकी बॉडी के साथ जो चेंजेस होते हैं उन चेंजेस के ऊपर डॉक्टर स्टडी करते हैं. ठीक है, दिस स्टडीज हैव बीन कंडक्टेड फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स. ठीक है, फॉर एग्जांपल 1900 के ज़माने में येलो फीवर के ऊपर ये स्टडी होता था. ठीक है, जनरली जो माइक्रोब्स होते हैं उसकी जो इंटेंसिटी होती है, जो वायरस का इंटेंसिटी होता है, वो थोड़ा कम डाला जाता है ह्यूमंस के अंदर, ताकि कंट्रोल एनवायरनमेंट में एक इनसे उसकी स्टडी हो सके. CHIS is very important to study and understand the infection and disease in a better way. Occasionally ये एक मेडिकल इंटरवेंशन की कैन से एफिकेसी और एफिशिएंसी को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है. ठीक है, ह्यूमन चैलेंज स्टडीज बोले या कंट्रोल्ड ह्यूमन इन्फेक्शन स्टडीज बोले. ठीक है, दे आर नॉट रिप्लेसमेंट फॉर द फेज 3 एफिकेसी ट्रायल. दोस्तों ये समझिए, जनरली टेस्टिंग कैसे होती है. एक तो आपने मेडिकल मतलब लेबोरेटरी में आपने एक डिजीज के सामने लड़ाई करने के लिए एक दवाई बनाई. अब वो दवाई आप अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट करेंगे ऑन एनिमल्स फर्स्ट. ठीक है, फिर उसके बाद आता है एक इनसे कंट्रोल एनवायरनमेंट में ह्यूमन के ऊपर, और जो सबसे आखिरी होता है, ये सब कुछ होने के बाद सबसे आखिरी होता है, दैट इज फेज 3. फेज 3 इज नॉट कंट्रोल्ड वन, मतलब सॉरी नॉट इन अ लिमिटेड सेंस, बट एक्चुअली में जिन लोगों को डिजीज हुआ उन्हीं लोगों के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट होता है. ठीक है, इन लास्ट 50 years CHIS studies have been used to accelerate vaccine development for disease like typhoid, cholera. उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण काम होता है. During COVID-19 pandemic, CHIS was employed to study SARS-CoV-2 on 36 volunteers after WHO gave approval in 2020. Now, this brings us to ethical challenge. दोस्तों ये ध्यान रहे, ये जिस तरीके से हम ट्रायल करते हैं उसकी वजह से एथिकल, ठीक है, लीगल, सोशल इश्यूज क्रिएट होते हैं. यहाँ पे एथिकल इश्यूज के बारे में बात हो रही है. ठीक है, दिस ह्यूमन चैलेंज स्टडीज आर पोजिंग सिग्निफिकेंट एथिकल चैलेंज. क्या एथिकल चैलेंज है कि जो लोग टेस्ट करेंगे क्या वो वेल ट्रेन्ड है, और जिस सिस्टम में उनको ट्रेन किया जाएगा, क्योंकि बात हो रही है कंट्रोल एनवायरनमेंट की, तो क्या वो सिस्टम रॉबस्ट है. सो कोलाबोरेशन विथ वेरियस इंस्टीट्यूशन एंड साइंटिस्ट, ठीक है, दे आर एक्सपीरियंस्ड इन दिस काइंड ऑफ ट्रायल इज वेरी एसेंशियल. और क्या उस तरीके से लोग मिलेंगे, और नहीं मिलेंगे तो क्या करेंगे. सो देयर आर एथिकल वायलेशन ऑल्सो take place. In many clinical trials, there were a lot of ethical violation took place, including both by ICMR as a body, even by the doctors. So they have raised a lot of concerns. Ethical challenges in conducting CHIS are more complex, and they have more potential for misuse and exploitation, especially because they are involving volunteers. And this is where all legal aspects will come into picture. ठीक है, लीगल पीपल, द पीपल फ्रॉम लॉ, दे विल फाइट ऑन दिस मैटर दैट कितना एथिकली एक्सेप्टेबल ये चीज़ें है. इफ CHI is implemented in India, it should be limited to studying disease with safe and effective treatment. यही होना चाहिए. ठीक है, CHI is majorly used for novel microbes and diseases, and therefore it should be, you can say, utilize only and only when India gains expertise on those microbes. ठीक है, तो ये एक वेलकम हैपनिंग है, पॉजिटिव है. ठीक है, पर उसको गंगो होकर आंखें बंद करके इसके अंदर जाना सही बात नहीं है. इज दैट वेरी क्लियर. ठीक है, मेरा ऐसा मानना है कि एग्जाम के अंदर ये CHIS के बारे में अच्छा सवाल तो पक्का ही बनेगा, नॉट ओनली इन द करंट अफेयर बट ऑल्सो इन द लॉजिकल रीजनिंग. सो यू मस्ट रीड दिस पैसेज केयरफुली. बड़ा महत्वपूर्ण आर्ग्यूमेंट आया है पुलिस ऑफिसर से. ठीक है, IPS ऑफिसर थे ये पुराने. ठीक है, RK विज, उनका कहना है चाइल्ड लॉ एंड कंसेंसुअल सेक्स. क्या बात चल रही है और क्यों चल रही है, चलिए समझते हैं. चाइल्ड लॉ एंड कंसेंसुअल सेक्स.
पिछले कुछ समय में अलग अलग हाई कोर्ट ने अलग अलग तरीके के जजमेंट दिए। मेजरली एक दिल्ली हाई कोर्ट पिक्चर में आया, मुंबई हाई कोर्ट पिक्चर में आया और मद्रास हाई कोर्ट पिक्चर में आया, विच इज अगेंस्ट पोक्सो। पोक्सो के नजरिए से इन हाई कोर्ट का बड़ा महत्वपूर्ण जजमेंट आया। पोक्सो का मतलब होता है प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। ठीक है, बड़ा महत्वपूर्ण एक्ट है, बच्चों को बचाना। वल्नरेबल ग्रुप है, छोटे बच्चे वल्नरेबल ग्रुप है, स्पेशली इन द सेक्सुअल अगेंस्ट ऑफेंसेस के नजरिए से, तो उनको बचाना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, तो पोक्सो एक्ट हमने बहुत अच्छी तरीके से बना के रखा हुआ है। अब भारत की सोसाइटी के अंदर बड़े बड़े चेंजेस हो रहे हैं। जैसे मुंबई हाई कोर्ट ने एक बड़ा महत्वपूर्ण जजमेंट दिया। एक बंदा था जो 25 साल का था, वो एक 17.5 साल की लड़की के साथ, है ना, लड़की और लड़का दोनों भाग गए। ठीक है, बॉम्बे में थे, वहां से भाग गए। ठीक है, आनंद में रहने लगे, आनंद सिटी में रहने लगे, गुजरात के अंदर, वहां पे वो रहने लगे। ठीक है, लड़की के ब्रदर ने कंप्लेन करी, ध्यान से समझना, लड़की के ब्रदर ने कंप्लेन करी कि भैया ये तो कहीं एक इनसे मिल नहीं रही है, शायद मुझे लगता है कि इसको कोई किडनैप करके गया है। ठीक है, फिर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, ये दोनों मिल गए। ठीक है, मिलने के बाद जब ये वापस आए बॉम्बे, लड़की अपने घर चली गई, लड़का अपने घर चला गया। ठीक है, और बाद में द गर्ल गॉट प्रेग्नेंट। व्हेन द गर्ल गॉट प्रेग्नेंट, ठीक है, शी वेंट फॉर एन एबॉर्शन। अच्छा, ये कोई मुद्दा लव जिहाद का नहीं था, प्राइमरली ये दोनों सेम कम्युनिटी के थे, दोनों मुस्लिम थे, दोनों सेम कम्युनिटी के थे। ठीक है, तो लव जिहाद का एंगल नहीं है। व्हाट वी आर ट्राइंग टू सी इज द इश्यूज हैपनिंग इन द कंट्री। देश के अंदर क्या प्रॉब्लम है और किस मुद्दे के ऊपर बात हो रही है, और फिर हम ये भी देखेंगे आर.के. विज साहब का ओपिनियन क्या है। ठीक है, तो जो 17.5 साल की लड़की थी जो प्रेग्नेंट हो गई, उसने प्रेगनेंसी को हटाने के लिए, एबॉर्शन करने के लिए वो गई। अब किसी ने भी कंप्लेन नहीं करी, पर पुलिस ने सुओ मोटू इस केस को ले लिया, क्योंकि वो लड़की प्रेग्नेंट थी। ठीक है, और लड़की के ऊपर मतलब लड़की के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी हो गई, ये तो पक्का है। तो उन्होंने इस बंदे के खिलाफ पोक्सो लगा दिया। आयरनी तो देखिए, उनके एफआईआर के अंदर, मुंबई पुलिस के एफआईआर के अंदर किडनैप करने का ऑफेंस नहीं था, है ना। लड़की तो नाबालिग थी, उसको लेकर गया ये बंदा। ठीक है, तो बोला कि नहीं, किडनैप नहीं किया, लड़की अपनी मर्जी से गई थी। चले, लड़की अपनी मर्जी से गई थी, पर उन्होंने लगाया पोक्सो, क्योंकि पोक्सो में कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए एज होती है 18 साल। 18 साल के नीचे इज नॉट अ कंसेंशुअल अगेंस्ट सेक्सुअल एक्टिविटी। और यहीं पे पिछले कुछ समय से इंडिया में बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, और उन केसेस के ऊपर अलग अलग हाई कोर्ट अपने अलग अलग तरीके से जजमेंट दे रहे हैं। कोई क्लीन इंफॉर्मेशन नहीं है। जब क्लीन इंफॉर्मेशन नहीं है तो पुलिस के लिए भी दिक्कत है। अलग अलग हाई कोर्ट, है ना, ये पोक्सो के अंदर ऐसा जो कंसेंशुअल एक्टिविटी होती है उसके लिए हाई कोर्ट अपनी तरीके से जजमेंट दे रहे हैं कि भैया नहीं, छोड़ दो इनको। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इनको छोड़ देने का वादा कर दिया, है ना, उन्होंने उस चीज़ का जजमेंट दे दिया। ठीक है, वो प्रॉब्लम नहीं है, पर पुलिस के लिए प्रॉब्लम क्या है? पुलिस के लिए प्रॉब्लम है, पुलिस को इस तरीके के केसेस की एफआईआर दर्ज करना, उसका पूरा प्रोसेस करना, उनको प्रोसिक्यूट करवाना, कोर्ट तक लेके जाना, ट्रायल कोर्ट से हाई कोर्ट से ऊपर, तो मतलब जो पुलिस है उसके लिए ज़्यादा काम हो जाता है, ऐसा आर.के. विज का कहना है। हाउएवर पुलिस के लिए ज़्यादा काम हो कि ना हो, व्हाट इज़ वेरी क्रूशियल इज, यू कैन से, ये वल्नरेबल ग्रुप के लिए 18 साल से छोटी एज करना, 16 साल करना, ये वाजिब है या नहीं, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? शायद 16 से 18 साल की उम्र के अंदर कोई उतना डेवलप नहीं हुआ हो, है ना, कोई छोटी बच्ची इतना डेवलप नहीं हुए, मेंटली इतना स्ट्रांग नहीं बनी हो। ठीक है, तो उसके लिए तो भैया थोड़ा सा और समय देना चाहिए ना। ठीक है, नहीं तो उसको 16 से 18 साल के अंदर उसको कोई बहला कर, फुसला कर, है ना, उसको लेके चला जाए तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम। तो कहीं ना कहीं हम सोसाइटी को बचाने की बात करें, कहीं ना कहीं जो लोग मैच्योर हो चुके हैं, जो डेवलप हो चुके हैं, उनके खिलाफ फिर गलत चीज़ें भी हो रही है। तो इन दोनों को बैलेंस कैसे करें इस देश के अंदर, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम का सिनारियो आ रहा है।
आपका ओपिनियन क्या है इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आपने भी सुना होगा, रिसेंटली मैंने एक करंट अफेयर के मॉड्यूल में कवर भी किया था कि एक पर्टिकुलर कंट्री ने उनकी जो कंसेंशुअल सेक्स की एज है उसको उन्होंने एक इनसे बढ़ा दी है, कम थी बहुत, उसको उन्होंने बढ़ा दी है। कौन से कंट्री की बात हो रही है, क्या एज थी और कितनी उसको बढ़ा दी है, प्लीज मुझे बताइए। ओके, इज दैट वेरी क्लियर टू एवरीवन? ग्रेट। लोकसभा का मॉनसून सेशन चल रहा है, बहुत सारे बिल आ रहे हैं, ठीक है, एक एक करके बिल बात करते हैं दोस्तों। लोकसभा पासेस कंटेंशियस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बिल। आपको याद होगा यूरोपियन यूनियन ने भी अभी रिसेंटली बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बिल पास किया था। इंडिया का बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बिल इज एन अमेंडमेंट बिल ऑफ 2002 एक्ट, जो 2002 का बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 था, ठीक है, उसके अंदर अमेंडमेंट करने की बात है। अमेंडमेंट के द्वारा क्या करेंगे, जो कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। यूजर्स ऑफ कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज, कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज क्या हो गया, आयुर्वेद, यूनानी, ठीक है, योगा, सिद्धा, होम्योपैथिक, है ना, ये सब को इन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया फ्रॉम शेयरिंग द बेनिफिट्स विद लोकल कम्युनिटी। सो अगर कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज है और वो लोगों को बता रहा है, सो दैट शुड बी गुड। द बिल ऑल्सो रिमूव्स रिसर्च एंड बायो सर्वे एक्टिविटीज फ्रॉम परव्यू ऑफ बेनिफिट शेयरिंग रिक्वायरमेंट। आपको बेनिफिट शेयर करना तो आपको कोई रिसर्च पहले करना पड़ेगा, रिसर्च का डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, फिर आप कुछ करोगे, तो ऐसा सब रिक्वायरमेंट निकाल दिया। दैट्स वेयर द कंटेंशियस इश्यू इज कमिंग। पतंजलि और ऐसी संस्थाएं इस मुद्दे के ऊपर, उनके पास जो भी नॉलेज है, कहीं कोडिफाइड नॉलेज है, उसके नॉलेज के ऊपर कुछ भी नाम देकर किसी को कुछ भी बेच सकती है और ये गलत हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज वेयर द प्रॉब्लम इज, ओके, ठीक है। एंड बिल ऑल्सो डिक्रिमिनलाइजेस ऑल द ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट। अनदर बिल विच वॉज पास्ड विच इज नोन एज मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बिल, लोकसभा ने इसको पास कर दिया। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बिल इज ऑल्सो अमेंडिंग पुराना 2002 का बिल विच इज मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, ठीक है। इट एस्टैब्लिशेस कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी टू कंडक्ट एंड सुपरवाइज इलेक्शंस इन द बोर्ड ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स। यू नो कोऑपरेटिव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हमने 2019 में एक नई मिनिस्ट्री डेवलप करी विच इज नोन एज मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स। उसके पहले मिनिस्टर बने मिस्टर अमित शाह। ध्यान रहे, cooperatives are very important body in our country because वो cooperative की वजह से we are able to have lot of activities. For example, Amul is, you can say, cooperative. एक बहुत बड़ा cooperative movement अमूल की वजह से चला, ठीक है। और आज फिशरीज के अंदर, कॉफी के अंदर, टी के अंदर, शुगर फैक्ट्रीज के अंदर, ठीक है, मिल्क फेडरेशन के अंदर कोऑपरेटिव्स चलते हैं, बहुत अच्छी तरीके से चलते हैं। इनफैक्ट हमारी हाउसिंग सोसाइटीज होती है वो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज होती है। तो अब ये हो गया कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी विच मीन्स कोऑपरेटिव्स वर्किंग इन मैनी डिफरेंट स्टेट्स, दे विल रिक्वायर prior permission of government authorities before redemption of their शेयर होल्डिंग। अगर वो अपनी शेयर होल्डिंग को रिडेम करना चाहते, उसको कम करना चाहते, उसको पास ऑन करना चाहते दूसरे लोगों के अंदर, तो उसके लिए उनको पहले गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। दोस्तों कोऑपरेटिव्स, बिकॉज दैट्स अ पब्लिक मैटर, गवर्नमेंट का रोल इसमें बहुत बड़ा होता है। गवर्नमेंट इसको एक से कोशिश करता है कंट्रोल करने के लिए, जैसे चैरिटेबल ट्रस्ट को, सोसाइटीज को, है ना, ये होते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, चैरिटेबल ट्रस्ट, सोसाइटीज, कोऑपरेटिव्स, है ना, ये नॉन प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशंस है और इनके लिए अच्छे अच्छे लॉज होते हैं और ये बिल के अंदर बड़े बदलाव हुए, ठीक है। एट द सेम टाइम फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 को अमेंड करता है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे चेंजेस है। दे हैव एग्जेम्प्टेड वेरियस टाइप्स ऑफ लैंड, अलग अलग तरीके की लैंड को इन्होंने अलग अलग नाम दे दिया, ठीक है। सो दैट मीन्स देर आर नोटिफाइड लैंड्स, ठीक है। सो नोटिफाइड एज अ फॉरेस्ट, अगर ऐसा लैंड बना के रखा हुआ है, उस लैंड के अंदर अगर कोई कुछ से कोई प्रॉपर्टी का कोई यूज करता है, ठीक है, उस यूज के लिए क्या लॉ होगा वो बताया। क्या है उसके अंदर, इट एग्जेम्प्ट्स सर्टेन टाइप्स ऑफ लैंड फ्रॉम द परव्यू ऑफ द एक्ट। दिस इंक्लूड लैंड विद इन 100 किलोमीटर ऑफ इंडियाज बॉर्डर
नीडेड फॉर नेशनल सिक्योरिटी प्रोजेक्ट। इंडिया के बॉर्डर के 100 किलोमीटर की रेंज में अगर बहुत बड़ा फॉरेस्ट आता है पर हमें सिक्योरिटी के लिए वो लैंड यूज करनी है, तो हम वहाँ पे रोड बनाने के लिए, एमिनिटीज बनाने के लिए, पब्लिक रोड बनाने के लिए, हैबिटेशन बनाने के लिए उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा उन्होंने इसके अंदर चेंजेस लाए हैं। ठीक है, प्राइवेट एंटिटी इस गवर्नमेंट फॉरेस्ट लैंड में जाकर कुछ एक्टिविटी करना चाहे तो वो भी कर सकती है, जिसके द्वारा ब्रिजेस बनाना, चेक पोस्ट बनाना, फेंसिंग बनाना, जू बनाना, सफारी बनाना, इको टूरिज्म बनाना, ये धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा। ठीक है, सेंटर मूव्स अ बिल टू नॉमिनेट 2 कश्मीरी माइग्रेंट्स टू द असेंबली। दोस्तों आपको याद होगा जम्मू कश्मीर में अब यूनियन टेरिटरी बन चुकी है। ये यूनियन टेरिटरी कम्स विद द लेजिस्लेटिव असेंबली। उसके अंदर यू कैन से देयर विल बी 2 कश्मीरी माइग्रेंट्स विल बी यू कैन से नॉमिनेटेड एंड 1 विल बी वुमन। कश्मीरी माइग्रेंट्स के अधिकारों के लिए, है ना। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट इज प्रपोजिंग टू नॉमिनेट 1 मेंबर फ्रॉम द पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, दे वर डिस्प्लेस्ड इन 47-48 और 65 की वॉर में या 71 की वॉर में, एंड दे केम टू इंडिया एंड देयरफॉर दे वर नोन एज कश्मीरी माइग्रेंट्स। समझ में आया दोस्तों? उन माइग्रेंट्स के लिए हम एक से 2 सीटें रखेंगे, उसमें से 1 वुमन होगी और 1 मेल। ठीक है, दिस इज हाउ दी आइडिया इज। याद रहेगा दोस्तों? ग्रेट। ठीक है, बिल ऑल्सो प्रपोजेस डिजिटाइजेशन ऑफ बर्थ रिकॉर्ड। हमने बात करी थी, ठीक है, कल रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो यू से बर्थ और डेथ का सर्टिफिकेट देते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट इज अवेलेबल थ्रू आरजीआई। ठीक है, मैरिज का भी रजिस्ट्रेशन यहीं पे होता है। तो अब उसके अंदर आधार कनेक्ट किया जाएगा और सब कुछ डिजिटल कन्वर्ट किया जाएगा। सो डिजिटली बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा। ठीक है, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स के अंदर 2 महत्वपूर्ण टर्म आए थे, तो आई थॉट कि वी विल डिस्कस ऑन दोस 2 टर्म्स। ठीक है, 1 टर्म इज 0 ओवर एंड अदर टर्म इज कॉल्ड व्हिप। क्या टर्म है? 0 ओवर। व्हाट डू यू मीन बाय 0 ओवर? 0 ओवर का मतलब होता है जब पार्लियामेंट में प्रोसीडिंग होती है, पूरे दिन पार्लियामेंट में जो प्रोसीडिंग होती है सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 6 बजे के बीच में, तो उसके अंदर अलग अलग यू से सिस्टम होती है। सबसे पहले 11 बजे से 12 बजे के बीच में, ठीक है, स्पेशल अटेंशन दिखाने वाले या स्पेशल मेंशन करने वाले मुद्दे उठाए जाते हैं, उसको कहा जाता है 0 ओवर। समझ में आया दोस्तों? अगर आपसे एग्जाम में सवाल पूछा 0 ओवर क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट प्रोसीडिंग में सबसे पहला 1 ओवर इज नोन एज 0 ओवर। उस 0 ओवर में क्या बातें चलती है? स्पेशल मेंशन या इंपॉर्टेंट अटेंशन सीकिंग इंफॉर्मेशन होगी, उसका डिस्कशन होगा, उसको नोन एज 0 ओवर। उसके बाद आता है 1 ओवर का 12 से 1 बजे के बीच में क्वेश्चन ओवर। क्वेश्चन ओवर में करीबन 20 स्टार्ड क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस है जिसको इन्होंने बोला कि भाई मैं क्वेश्चन रख रहा हूं, उसका मुझे आंसर मिलेगा रिटर्न फॉर्मेट में। अनस्टार्ड क्वेश्चन होंगे जिसके आंसर उनको अगेन से ओरली आंसर मिलेंगे। तो क्वेश्चन ओवर में 1 ओवर में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर 1 to 2 आवर का लंच ब्रेक होता है और 2 से 6 के बीच में वेरियस लेजिस्लेटिव बिजनेसेस होंगे जहां पे बिल पास होगा और इस तरीके की बातें होगी। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों? 0 ओवर। फिर आता है व्हिप इश्यू करना। न्यूज देखिए क्या बोला है। दिल्ली सर्विसेज बिल, जो हमने बहुत बार बात करी, इसके ऊपर बड़ा डिबेटेबल इश्यू चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बिठा के रखी है। 4 अपोजिशन पार्टी ने, कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी और बीआरएस ने व्हिप इश्यू करा अपनी पार्टी के लोगों के लिए। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हिप? व्हिप इज एन ऑफिशियल ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी हुज टास्क इज टू एंश्योर पार्टी डिसिप्लिन इन लेजिस्लेचर। एक चाबुक लेके आदमी खड़ा है, रियलिटी में नहीं। ठीक है, तो व्हिप इश्यू करने का मतलब क्या है कि पार्टी ने एक लीडर को अपॉइंट किया, उस लीडर ने सबको कहा कि आपको कंपलसरी इस सर्विसेज बिल के फेवर में या उसके अगेंस्ट में ही आपको अपना वोट देना है, जो भी पार्टी का विचार होगा। जैसे इस केस में तो ये दिल्ली सर्विसेज बिल गवर्नमेंट के बिल के खिलाफ ही बात होगी, तो वही उनको करना है कंपलसरी। अगर वो जो
कांग्रेस का या टीएमसी का या आरजेडी का या बीआरएस का कोई मेंबर होगा, अगर वो इस व्हीप को फॉलो नहीं करता है तो वो पार्टी उसको डिस्क्वालीफाई जाहिर कर सकती है और उसको निकाल सकती है. दिस इज हाउ इट इज पॉसिबल. समझ में आया दोस्तों? जीरो ओवर और व्हिप का मतलब क्या होता है? दैट्स वेरी इजी. काबुल से न्यूज आ रही है दैट थाउजेंड्स ऑफ अफगान सलोन्स आर क्लोज. तालिबान ने डेडलाइन दी थी उनको 2021 में, अगस्त महीने में 15 अगस्त को, जब तालिबान ने पूरा का पूरा अफगान अपने हाथ में ले लिया, ठीक है, उस समय पे उन्होंने कहा कि विमेन और गर्ल्स को पब्लिक स्पेस में आना नहीं चाहिए और जो भी ब्यूटी पार्लर्स है सबको बंद करना चाहिए. तो अब सब खत्म हो रहे हैं, वहां पे कोई ब्यूटी पार्लर होगा नहीं. सो जो बहुत सारी विमेन है जिनको मतलब नौकरी मिलती है, ठीक है, वो अपनी इकोनॉमिक अर्निंग इसके द्वारा डेवलप करते हैं, तो वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा. देश के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी में सलून ब्यूटी पार्लर का बड़ा रोल है. विमेन आर एम्पावर्ड विद द हेल्प ऑफ दिस. ठीक है. चाइनीज ऑफिशियल, ठीक है, जाओ जियांगयोंग, ही वाज अ फॉर्मर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के चीफ थे ई कॉमर्स हब के. ठीक है, उनको कैन से डेथ सेंटेंस दे दिया क्योंकि उन्होंने 25 मिलियन का ब्राइब किया था. चाइना के सेंट्रल बैंक के गवर्नर नए बने हैं, पैंग गोंगशेंग. बिल्कुल बड़े इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है, ये याद रखेगा. इलेट इस तरीके के सवाल जरूर पूछेगा, सो प्लीज बी केयरफुल अबाउट इट. केविन स्पेसी, ठीक है, जो एक यूएस एक्टर थे, उनके खिलाफ मी टू के चार्जेस लगे थे. 64 ईयर ओल्ड ऑस्कार विनिंग से के ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट के टोटल 9 चार्जेस लगे थे. ठीक है, और इसके उनके ऊपर वो जो चार्जेस लगे थे, है ना, उसकी वजह से उनके ऊपर बहुत सारे मूवीज बंद करनी पड़ी थी. ठीक है, अब उनको एक्विट कर दिया है लंदन ट्रायल कोर्ट ने. ईरान वापस अपनी हिजाब क्रैकडाउन चालू कर रहा है. ठीक है, जब से महासा अमीनी करके एक लेडी थी जिसकी डेथ हुई थी, जब इस तरीके के हिजाब क्रैकडाउन हुआ था, उसके बाद से उस क्रैकडाउन को थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया था. अब ये वापस बढ़ा रहे हैं. कंबोडिया से न्यूज आ रही है. कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर हुन सेन, जो करीबन 4 डिकेड से 40 सालों से राज कर रहे थे, ठीक है, एक मिलिट्री रूल की तरीके से राज कर रहे थे, अब वो स्टेप डाउन होंगे और अपने बेटे हुन मानेत को वो सत्ता पे लगाएंगे. किनको लगाएंगे? हुन मानेत. ओके, सो प्लीज याद रखिएगा. कंबोडिया के अंदर एक बड़ा महत्वपूर्ण एक से मंदिर आया है, विच इज कॉल्ड अंगकोर वाट करके मंदिर का नाम है, जो विष्णु भगवान का मंदिर है. इजराइल के अनरेस्ट के बारे में हम बहुत रेगुलरली आपके साथ बात करते रहते हैं. जुडिशरी का जो एक से पूरा कंट्रोल करने का प्लान है नेतान्याहू साहब का, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट इस पिटीशन को देखेगी. ये न्यूज़ वापस आई है, देखते हैं फाइनली डिसीजन क्या आता है. ठीक है, आपको याद होगा कि यूएसए गॉट इटसेल्फ अवे फ्रॉम यूनेस्को फ्यू इयर्स बैक. पिछले 5 सालों में यूएसए ने अपने आप को यूनेस्को में से बाहर निकाल दिया था. अब यू कैन से द फर्स्ट लेडी ऑफ यूएसए, जिल बाइडेन, शी अटेंडेड अ फ्लैग रेजिंग सेरेमनी एट यूनेस्को इन पेरिस एंड दे आर नाउ ऑफिशियली you can say entering into UN agency called UNESCO. ठीक है ना, ये याद रखिएगा, है ना. The Stars and Stripes was hosted outside UNESCO headquarter. UNESCO headquarter कहाँ पर है ये बताइए. मैंने बता दिया कहाँ पर है, आपको पता ही चल जाना चाहिए. ठीक है, नाउ यूनेस्को के अंदर, है ना, यूएसए आ चुका है. यूनेस्को ने एक बड़ा महत्वपूर्ण इंडिया के लिए और पूरे वर्ल्ड के अंदर बताया. ठीक है, यूएन की बॉडी है ना, जो ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटर करती है, उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश किया, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन अ टूल ऑन हुज टर्म. ठीक है, उन्होंने ये एंडोर्स किया दैट स्कूल्स के अंदर स्मार्टफोन्स को बैन करना चाहिए. टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इज इंपॉर्टेंट, बट टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इज नॉट इंप्रूविंग लर्निंग. आप देखेंगे आपकी स्कूलों में पिछले 10-12 सालों से अलग अलग तरीके के टेक्नोलॉजी का यूज किया गया. स्मार्ट बोर्ड आए, पता नहीं क्या क्या आया, एंड इट इज नॉट एट ऑल इम्प्रूव्ड. स्मार्ट बोर्ड आते हैं, लगते हैं, और बाद में उसका कोई यूज होता नहीं है. ठीक है, तो ये अच्छी बात है कि इसको कोई यूज, मतलब नॉर्मली जिस तरीके से पढ़ाई चल रही है वैसे ही पढ़ाई चलनी चाहिए. दैट इज व्हाट इट शुड बी. अदरवाइज दिस इज गोइंग टू बी अननेसेसरी बर्डन ऑन स्कूल
एज वेल एज ऑन द पेरेंट्स। आपके पेरेंट्स पिछले 10-15 सालों से आपकी स्कूल के लिए टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए हर साल लेकिन से 5,000-6,000 रुपया देते हैं और आपको उस टेक्नोलॉजी का कोई बेनिफिट होता नहीं है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए। इंडिया ने सर्टन टाइप ऑफ राइस को एक्सपोर्ट करने से बैन कर दिया है। ठीक है ना, क्यों बैन किया है? क्योंकि इंडिया में अगली जो सीजन आ रही है, फेस्टिवल सीजन आ रही है, उसमें राइस की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। जब राइस की ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है, उस समय पे अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो राइस के भाव बढ़ जाएंगे, वॉलेटिलिटी आएगी और महंगाई अगर बढ़ गई फेस्टिवल सीजन के लिए तो इंडिया के लिए बुरी हालत होगी। तो जो नॉन बासमती राइस है, कुछ नॉन बासमती राइस है, उसके ऊपर बैन लगा के रखा है और इसकी जो कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल एक्सपोर्ट में वो है 25%। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, 75% is coming from you can say basmati and other kind of non-basmati rice. IMF बोलता है that India's rice curbs could spur inflation. किसको दिक्कत करेगा? They say it is going to impact Asian and African nation. Anyway, there is a Black Sea grain agreement के अंदर यू कैन से रशिया ने अपने हाथ खड़े कर दिए। तो रशिया यूक्रेन से बहुत सारा ग्रेन जो वर्ल्ड में जाना चाहिए वो वैसे भी जाएगा नहीं, और वैसे ही पूरे वर्ल्ड में फूड क्राइसिस चल रहा है और ये फूड क्राइसिस के सामने इंडिया की तरफ से ये एक और कंट्रीब्यूशन, इट विल क्रिएट ऑल द मोर ट्रबल, ऐसा उनका कहना है। आईसीसी ने हरमनप्रीत कौर के ऊपर तीसरे ओडीआई अगेंस्ट बांग्लादेश जो मीरपुर में हुई थी, ठीक है, वहां पे उन्होंने जो गलती करी उसके लिए 2 मैच का बैन लगा दिया है। शी हैड अ बुरिश बिहेवियर, शी हैड अ रूड बिहेवियर, वो आउट हो गई। उन्होंने अगेन से है ना एक तरीके से पूरी स्टंप को तोड़ दिया और बाद में है ना बिकॉज शी वॉज एडजर्ड एज LBW, शी क्रिटिसाइज इट पब्लिकली, शी सेड कि ओ वी आर नॉट फाइटिंग अगेंस्ट द टीम, वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द अंपायर्स। सो जिसकी वजह से इनको फाइन लगाया गया, जो अच्छी बात नहीं है। और नॉट जस्ट हरमनप्रीत कौर, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैव डन दिस रॉन्ग, बट इट इज नॉट एक्सपेक्टेड कि भाई आप ऐसा करिए। ठीक है, तो प्लीज़ ये ध्यान रहे। ठीक है, इंडिया बांग्लादेश में खेलने के लिए गया था, 3 मैचेस थी और वो 1-1 से है ना टाई हो गया। वर्ल्ड कप जो चल रहा है ना ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में चल रहा है, ठीक है, और वहाँ पे जो यंगेस्ट वर्ल्ड कप प्लेयर है जिसका नाम है फेर, क्या नाम है उनका? कैसी फेर। क्या नाम है? कैसी फेर, नोट करिएगा। सिमिलरली टूर दी फ्रांस, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट इवेंट इन फ्रांस, दैट इज वन बाय यू कैन से विंगेगार्ड, है ना, क्या नाम है इस बंदे का? विंगेगार्ड, क्या बोलते हैं इसको? विंगेगार्ड। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। पेरिस ओलंपिक्स 2026 में होने वाला है। 2026 में जो पेरिस से 2026 नहीं सॉरी 2026 में तो भैया है ना आपका वर्ल्ड कप होने वाला है। 2024 में पेरिस में जो ओलंपिक्स होने वाले हैं उसके अंदर बेलारूस और रशिया दे बीन ओमिटेड फ्रॉम द इनवाइटी, सो रशिया एंड बेलारूस विल नॉट पार्टिसिपेट इन पेरिस, ऐसा अभी तक पता चला है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़, सुप्रीम कोर्ट काफ़ी समय से है ना एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के खिलाफ बड़े पंगे करे। संजय कुमार मिश्रा जी जो एक से एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के एक से चीफ है, डायरेक्टर है, उनको कहते हैं कि भैया इनको निकाल दीजिए, क्रिटिकल जंक्चर है, ऐसा गवर्नमेंट बोल रही है कि नहीं निकाल सकते, थोड़ा टेन्योर एक्सटेंड करिए। 31 जुलाई में उनको निकालना चाहिए था, पर क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट FATF के एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। FATF इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये एक इंपॉर्टेंट बॉडी है जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट एक्टिविटी के खिलाफ काम करती है, देखती है कि गवर्नमेंट के द्वारा क्या एक ऑर्गेनाइज वे में टेररिस्ट को फंडिंग मिलती है, मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर गवर्नमेंट के रूल्स क्या है, किस तरीके से काम करती है। तो FATF का इवोल्यूशन का प्रोसेस चल रहा है। उस इवोल्यूशन प्रोसेस के अंदर ED, क्योंकि ED भी वही काम करते हैं, ED भी PMLA के अंदर आते हैं, ये सर ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर आते हैं। तो इसकी वजह से ये ED जब आए उसके अंदर
ठीक है, तो वो जब ये काम कर रहे हैं तो उनको बीच में छोड़ना तो नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात मान ली और उनका टेन्योर अब सितंबर 15 तक एक्सटेंड कर दिया। 31 तक का था, 31 जुलाई तक का था, इसको उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ग्रेट, चलिए आज का सेशन समझ में आया होगा, मजा आया होगा। ठीक है, अगर आज के सेशन में मजा आया है तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड टेल टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू बी पार्ट ऑफ प्रो टैलेंट। ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।